Well, so this is absolutely new batch, fresh batch. If anybody want to join, so inform them, ask him, ask her. Your brother has not come today. But today he didn't come. He went to my maternal uncle's house. One, Ayush is not coming nowadays. I don't know, sir. You do not know. Yes. He will practice. He is practicing. Yes. What? Game? Yes. In school. Later, sir. Just take a seat. So, what things was given to you? I have started this batch. Have I started this batch? Or day before, I think from Saturday I started. No. I have just taught and I have just told something about what? Nothing. Okay. So first question. This batch is absolutely A. Just look here. This is batch A, right? And my question is to you, and your question is to me. Sir, how to speak or learn English? How to speak or learn, English. So, what do you know about how to learn English? How to speak English? One question to you. How you started speaking Bhojpuri and how you started speaking Hindi? Just tell me. Is there anybody who can tell me? Who can speak? How you started speaking Bhojpuri, Hindi? How? You will say definitely, sir, by listening and learning, by observing and by speaking. सुनो, ऑब्जर्व करो और बोलो. The same thing you have to repeat with English. English के साथ भी वही रिपीट करना है. ठीक है? उस समय हम पढ़ नहीं पाते थे लेकिन बोल दिए. लेकिन इंग्लिश में एक एक्स्ट्रा चीज तुम्हें मिलेगा. And that is reading. First you should what? Read. Reading must have. Reading is must. Reading is required. Reading is necessary. Reading is need. Reading is important. So first you should start reading any things in English. Okay. So reading in which language? In English. कुछ भी. So first homework दिया ही गया है. You have been given what? From class 6 to class 10th. Book of English. You have to read out within 1 month, not for 6 months.
Within 1 month you have to read out from 6th class to 10th class book of English. Got it? इसके अलावा रीडिंग में if you have any kind of story book, motivational books, comic books, comedian books, but condition is that ki they should be in English. Okay? Apart from it, you have newspaper. After 1 month, you will be given a newspaper to read. उसको रीड करना है. तो जो मेरा स्टेप है, जैसे मैं स्टेप बनाया हूँ, जैसे मैं सिलेबस को, as I have designed my syllabus, if you follow this, definitely you will get success in English, not in your life, but in English. But if you do not follow this, tips, these steps, you will not get, you will not learn. Your course will be completed, but you will not complete yourself. So better for you, start from today, start from first day, learning. नहीं करोगे नहीं होगा. Second thing, be a good listener. Be a good listener and observer. Observer. Yes, you got right. How to listen? From where to listen? So if you use mobile, then go to YouTube and search TEDx channel, search news channels in English, and listen to them for 20 minutes, 15 minutes daily. Okay, sir, what if I do not have mobile? I have solution for you. What I will speak and what I am speaking now and what I always speak and what someone is speaking and someone speaks or will speak, just you have to listen that. Just you have to listen that. Either me, I, or someone. In school, in coaching, in different places, in market, in this coaching, that coaching, wherever, if someone is speaking English, so try to listen to them carefully. उसको carefully क्या करना है? सुनना है और observe करना है. क्या करना है? Observe करना है. Observe means उसको उसमें मंथन करना है. IPO सिस्टम लगाना है माइंड में. IPO. I for input, P for processing and O for output. यानी कि अगर तुम मुंह से आउटपुट निकालना चाहते हो तो पहले तुमको इनपुट माइंड में डालना होगा. तो माइंड में इनपुट आएगा कहां से? सो बाय लिसनिंग, बाय ऑब्जर्विंग, बाय रीडिंग. इसी के थ्रू आएगा. ट्रांसलेशन मेकिंग के थ्रू नहीं आएगा. So just you have to listen carefully. कोई भी अगर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आज बात बोल रहा हूँ, देखते हैं how many of you caught my point. जो मैं बोल रहा हूँ इसको जस्ट आपको माइंड में रिपीट करना है. जो भी एक लाइन भी अगर आज का याद हो गया तुम्हारे मेरे जुबान से जो बोला हुआ, अगर वन डे में रिमेम्बर करते हो तो डेफिनेटली तुम सब कुछ याद कर जाओगे. सब कुछ तुम उसको उसी को बार-बार रिपीट करना है. बार-बार रिपीट करना है. बार-बार रिपीट करना है. वन सेंटेंस remember and repeat them many times. ठीक है? तो गुड लिसनर बनना है और गुड ऑब्जर्वर बनना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हें इंग्लिश सीखने का. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे इंपॉर्टेंट. This is the most important point to learn English. Not learn English and learn any kind of English. Sorry, any kind of language. Because you started speaking Bhojpuri. How? By listening and by observing. You started speaking Hindi by listening, by observing. Just tell me one thing. Those who are illiterate, it means जो अनपढ़ है, क्या हिंदी नहीं बोलते हैं? बोलते हैं. तो उनको कहाँ मतलब कि ये हुआ कि व्याकरण पढ़े हिंदी आया? तो कैसे बोले? लिख कर भी तो नहीं बोले उनको. जब उनको अनपढ़ लिख कहां से पाएंगे? तो जस्ट लिसनिंग कर करके, ऑब्जर्व कर करके, अच्छा इसको छड़ी बोलते हैं, बार बार उसको
शुरुआत में बोला गया कि छोटे बच्चे को इसको क्या बोलते नहीं बता पाएगा, और उसको तो छड़ी लेकर जाओ तब भी नहीं जाएगा। जब तक वो 4 10 बार 20 बार उसके माइंड में पड़ ना जाएगा चीज को छड़ी बोलते जाएगा, छड़ी लगेगा बोले तो तभी जाके छड़ी लगेगा। तो सेम हमको इंग्लिश में भी करना है उसको वही चीज। इंग्लिश में स्टिक लेकर आओ, उसको स्टिक वाला स्टिक, उसको मालूम नहीं कि इसको हिंदी में छड़ी कहते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश स्टिक है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है, देन स्टार्ट स्पीकिंग। उसके बाद बोलना शुरू कर देना है। जस्ट योर क्लास हैज बीन स्टार्टेड एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, देन यू हैव टू स्पीकिंग। तब आपको क्या करना है, स्पीकिंग करना है। ये दोनों काम करने के बाद और इसके साथ साथ भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको रिवीजन, जो भी पढ़ाया जा रहा है बताया जा रहा है उसको जस्ट यू हैव टू रिवाइज एवरी डे रिवाइजिंग करो एवरी डे। एक दिन का ये नहीं स्किप नहीं होना चाहिए, एंड फर्स्ट की एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज किसी के माउथ से हम नहीं सुनना चाहेंगे, है ना। अच्छा वन मोर थिंग की बताया गया था कि तुम्हें जो सेंटेंस बोलोगे उसमें मोस्टली हिंदी आएगा, उसको हिंदी को रिप्लेस करना था। यही चीज बताया गया था ना, यू वर टोल्ड यू हैव टू रिप्लेस वर्ड को रिप्लेस करना है ना। चलिए रिवीजन करना है आपको ये। और इसके अलावा आज मैं बता, इसके बाद नहीं बताऊंगा। मॉर्निंग एंड इवनिंग, जो मॉर्निंग टाइम है इवनिंग टाइम है, दिन में ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट मॉर्निंग में 30 मिनट्स निकालना है तुम्हें, 30 मिनट कम से कम निकालना है रीडिंग के लिए। चाहे रीडिंग करो, माने इंग्लिश पे ही वर्क करना है, रीडिंग करो, प्रैक्टिस करो, व्हाटएवर यू, इट्स योर चॉइस। और 30 मिनट सोने से पहले, दैट्स एनफ टू लर्न इंग्लिश। बाद बाकी तो दिन में ऑटोमेटिक तुम्हारे मुंह से इंग्लिश निकलेगा, जहां भी तुम देखोगे वहां पर। यानी कि खुद को चेंज करना है, अपना मीडियम चेंज करना है। तो मीडियम चेंज करने के लिए तुम्हें हर चीज, हर अपना नजरिया चेंज करना होगा। अब तुम्हारा माइंडसेट चेंज करना होगा, तभी होगा, है ना। 30 मिनट आपको सुबह में टाइम देना है इंग्लिश पे। क्यों? जब सुबह में तुम सुबह उठते ही अगर तुम इंग्लिश पर टाइम देते तो दिन भर तुम्हारे माइंड में इंग्लिश रहेगा। जब तुम सोने से पहले पूरा कंसिस्टेंट होकर अगर तुम इंग्लिश पे 30 मिनट देते तो तुम्हारे रात भर पूरा होल नाइट तुम्हारे माइंड में रहेगा इंग्लिश, और दिन में ठीक ठाक रहेगा ही, तुम देखते रहोगे जो भी। ये 4-5 चीजें तुम्हें, है ना, करना है डेली बेसिस पे। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, ये तुम्हारा एक फ्राइडे रहेगा, सैटरडे रहेगा एंड संडे। फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट इन द सेंस कि नॉट इन द पेपर पर नहीं, जस्ट तुम्हारा रीडिंग टेस्ट करेंगे, तुम्हारा इंप्रूव हुआ है कि नहीं, पीछे के जो भी पढ़ा वो टेस्ट करेंगे ओरली, नॉट रिटन फॉर्म, ओरली चेक करेंगे हर फ्राइडे को, सो दैट कि तुम्हें इंप्रूवमेंट कार्ड मिलता रहे। हर सैटरडे को तुमको स्टेज से बोलना है, स्टेज परफॉर्मेंस यहाँ पर आकर तुमको बोलना है। हर सैटरडे को ये कंडक्ट होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, हर संडे को आउटडोर सेशन प्रैक्टिस होगा। आउटडोर सेशन जिसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना सिखाएगा, बातें करना सिखाया जाएगा, है ना। ये सब करते हैं, इसमें भी सीखेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्रुप डिस्कशन। व्हाट? ग्रुप डिस्कशन। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगेगा सर क्या होता है पता है? तुम स्टार्ट कर दिए अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर कैसे? जो तुम हिंदी नहीं बोलते, भोजपुरी नहीं बोलते, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला स्टेप तो यही है कि तुम्हारा यहाँ भोजपुरी बंद है, तुम्हारा हिंदी बंद है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहला स्टेप यही है। सेकंड स्टेप की तुम गाली गलौज नहीं करते, फ्रेंडली रहते, तो सेकंड स्टेप यह है। थर्ड, तुम अगर तो बढ़िया से कम्युनिकेट करने लगे, बात करने लगे, है ना, एक दूसरे से पूरा कॉन्फिडेंट होकर यहाँ से अगर बोल रहे हो और इंग्लिश में बात कर रहे हो, थर्ड फोर्थ स्टेप तो वही हो गया। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वही होता है। तुम्हारे खड़ा होने का तरीका, बहुत आदमी ऊपर देख के बोलता है, नीचे देख के बोलता है। तुम अगर बहुत आदमी
सामने वाला में देखना, सामने खड़ा होकर बोलता है ना कुछ, तो पर्सनालिटी स्टेप का फिफ्थ स्टेप वो है, वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। जो मैं यहाँ बंद करवाया अपने मर्जी से थोड़े करवाया हूँ, उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। जब तक हम कुछ करने के लिए बंद नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। जैसे हमको बहुत दूर पानी ले जाना है, हमारे पास मान लो पाइप है, फट गया हो, हमको बहुत दूर ले जाना है, तो क्या करना होगा, उस पाइप को क्या करना होगा, जहां जहां फटा होगा वहां बांधना होगा, तभी तो पानी उतना दूर जाएगा। नहीं बांधोगे तो पानी का रास्ते में ही हो जाएगा। वही बात है कि कोई इंग्लिश की तरफ ले जाना है तो जैसे हिंदी और भोजपुरी बंद करेंगे तब तो तुम इंग्लिश की दिशा में जाओगे, इसीलिए ये काम करते हैं। इसके अलावा डिबेट इसलिए कराएंगे हम लोग, डिबेट इन द सेंस की वाद विवाद होता है, सो दैट कि तुम फ्लुएंसी ला सको, फास्ट बोलने का, फास्ट डिबेट के थ्रू। या आई ही सर ही डिड, नो सर शी डिड, सर आई डिड नॉट डू, व्हाई आर यू सेइंग आई डिड, ये फास्ट ऐसे करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट कि आपका इंटरव्यू, फेक इंटरव्यू, यहाँ पर फेक इंटरव्यू होगा, बट इंटरव्यू ऐसा हम कराएंगे कि जैसे एक्चुअल में होता है उस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट्स योर फादर नेम, नो, ये नहीं पूछा जाएगा। व्हाई शुड आई हायर यू, अगर तुम प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो क्यों हायर करूं, व्हाई शुड आई हायर, यू नो, आई हायर यू, है ना। सो आपको इस पे काम करना है। तो इंटरव्यू हम लोग करेंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि तुम इस क्लास को कर लो बढ़िया से ठीक ठाक, 12th बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टार्ट मेकिंग मनी। You can start making money after 12th. After completing 12th, you know, appear in your exam, then coming from your examination hall, then you start making, you know, money from any point of view. And I know you are preparing for government exams, but you will, you know, continue your government, you know, exams. But plan B you must have. Plan B में भी होना चाहिए कि अलग से तुम कोई काम कर सको और वहां से पेमेंट भी अपना मेक कर सको। उसके लिए इंटरव्यू सेशन है, फ्लुएंसी के लिए डिबेट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आउटडोर सेशन है, ग्रुप डिस्कशन के लिए वहीं से बाहर हो जाएगा ये आउटडोर सेशन में। तो ये सब चीजें हम लोगों को करना है। इसमें तुम कहीं नहीं लिखी जगह का प्रयोग पढ़ना है, इसमें कहीं नहीं लिखे हम टेंस का नाम, टेंस पढ़ना है, कहीं नहीं लिखे है। तो एक्चुअल में इंग्लिश इसे पढ़ना है जो कहीं नहीं पढ़ाई होता है। वो लोग स्टार्ट करेंगे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्या ही होगा, पहले स्टार्ट तो कराओ और ठीक ठाक हो जाएगा। इज कहाँ होता है, वाच कहाँ होता है, आर कहाँ होगा। तो ये चीजें तुम्हें करना है डेली। जो और हाँ, और जो बताया गया उसको करना ही है। सी इन इंग्लिश एवरीथिंग, है ना, इंग्लिश के नजर से देखना है सब कुछ, आपको ये करना है, तब आपका इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगा। ये करोगे और इसमें से एक भी स्टेप अगर तुम छोड़ते हो, भले ही इसमें और स्टेप जोड़ दूं लेकिन घटाऊंगा नहीं, एक भी स्टेप अगर तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा आना इंग्लिश नहीं ठीक होगा, है ना। सभी को खुद को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। जो तुम यहाँ करते हो सेम रवैया तुम अपने स्कूल में करो, सेम रवैया तुम अपने इंस्टीट्यूट में करो और घर पे करो, सो दैट कि लगे कि हाँ कहीं पढ़ रहे हैं तो उसका इंप्रूवमेंट दिख रहा है बच्चे में, है ना। सो जैसे यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम किया जा रहा है, जब तक तुम और जगह इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा। सो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सेकंड थिंग कि अपने नोटबुक से जो इररिलेवेंट थिंग्स लिखते हो वो नहीं लिखना है। जैसे देखो लिख कर पूरा भर दिया है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तुम्हारा पहला स्टेप गिर गया नीचे। नोटबुक पर इररिलेवेंट चीजें लिखना, हाथ पर इररिलेवेंट चीजें लिखना, स्कूल गर्ल्स को जो मेहंदी छापना, आप इसको स्टार्ट करिए राइटिंग। बाकी कोई अपसेंट रहोगे तो अपना समझा देना लोग, कोई अगर आएगा कोई तो, ठीक है। Let it on. You stand up. Reading is की है? No. Keep standing. You. Reading की है? कितना चैप्टर कंप्लीट कर दे? देखो खड़े खड़े। किस क्लास में हो तुम?
6 में, इस साल 7th में जा रही हो, सो 6 का बुक खत्म कर दी। प्रॉब्लम्स तो किससे सॉर्ट आउट होगा? रितिका ने। हाँ ओके ठीक है, क्या कह रहे हो देखिए फटाफट। Road, field, girls, boys. स्टार्ट राइटिंग बाकी लोग। Man, school, temple, bus, cycle. क्लास नोट्स है ना, उसमें लिखना है। क्लास नोट्स में नोटबुक लाए हो? Books, notebook, pen. जो लोग थोड़ा सा कमजोर हो तो बता दो कौन सा क्लास नोट्स है, थोड़ा हेल्प करो। Sweater, muffler, stick, whiteboard, watch, wire, wall, tube light, door, window, many types of tree.